इसी के साथ हम अपने टेक्निकल सेशन को शुरू करते हैं. To start with, I would like to invite Dr. Sanjay Tiwari ji. He is a managing committee member of the prestigious Indian Sociological Society with a vivid industry and academic exposure in the field of sociology, sports and management. He is credited with establishing sports sociology in India, both within the Indian Sociological Society and the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. He is also a qualified national technical official of the Athletics Federation of India. He is the sole long-time member from India of the International Sociology of Sports Association, the North American Society for Sports Sociology, and the Society for the Study of Social Problems, USA. He is also an international reviewer of the prestigious International Journal for the Review of the Sociology of Sports. He serves as a senior faculty member at the Divisional Teaching Center of the Mammoth PSU Life Insurance Corporation of India and has also served in the Central Board of the Sports Promotion. Now I would like to invite Dr. Sanjay Tiwari ji to please speak on the topic how the sociology is working in the field of sports and how we can connect the sociology एक समाज शास्त्र को किस तरीके से खेल के साथ किस तरीके से फिटनेस के साथ हम जोड़ सकते हैं उस पर आपके डेलिब्रेशन के लिए सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करते हैं डॉक्टर संजय तिवारी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद I hope the screen is everybody. Thank you very much for giving me this opportunity to present my small views, specifically in the area of sociology of sports. And on this very August day, where we celebrate the second year of the Fitness India movement. At the outset, I thank the IGNOU Center of Lucknow and the Ek Bharat Shresth Bharat program of the University of Lucknow for coming together and holding this very important national webinar. I thank the Honorable Vice Chancellor Professor Alok Kumar Rai ji for having consented to proceed ahead with this webinar. I thank the Chairperson and the Regional Director Dr. Manorama Singh, the Chairperson Dr. Sanjay Kumar Divakar ji, the Deputy Director of the RUSA, my colleagues and other speakers, Anant Mishra ji, he knows me, he is a sports journalist. Then Engineer Kumar Dubey ji, he will be talking about yoga, and naturally the practitioner Muhammad Ubaid Kamal ji. I also thank my colleagues Anamika ji, Dr. Pramod Gupta ji, my brother, and Anshu Kedia ji, who also looks after the NSS, which also is an extended part of the Fitness India or the cultural activities. My name is Dr. Sanjay Tiwari, and I happen to be the managing committee member of the Indian Sociological Society. I am an athlete and I am a national technical official of the Athletics Federation of India. I also happen to be the honorary director of the Uttar Pradesh Athletics Association and a person who has been given the charge of formulating the kids athletics in the Uttar Pradesh by the Athletics Federation of India. So there are many issues which I will discuss over my small presentation. I hope to rush through my slides because I think they are 20 or 22, 23 in number. So I'll try to keep it because 35 to 40 minutes have been provided by the organizers. Now this sociology of sport is specifically for the assistant professors, the associate professors and the professors, as also to the students, is a very vibrant and a very new area. When I say very new area, it means it has only entered the 4th to 5th year as far as India is concerned. And sports sociology has been very prevalent in the other parts of the world. Means not in India, but in the western part of the world. It has been very, you can say, specific, and almost all the universities in the western part of the world have the content of sports sociology over there.
In India, of late, what has happened that we have been studying sports psychology, we have been studying sport management, and we have been studying other issues which basically fall within the rhythm of physical education, but not when it comes to the study of sport or in the view of the society as a whole. When I talk about sports psychology, it talks about the individual mindset. Means मैं खेल को किस प्रकार से देख पा रहा हूँ. This is the study of sports psychology. But हमारा समाज as a sociologist, हमारा समाज सोसाइटी जो है वो स्पोर्ट्स को कैसे देख रहा है. This has a very tremendous impact, and particularly because India is a vast nation with a vast population and a diverse population. So हमारे यहाँ इस स्पोर्ट्स में सोसाइटी का क्या रोल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल नो दैट स्पोर्ट्स always from ancient times it has impacted all over the world very tremendously, and individual societies have been impacted, and all the people who have been connected with the societies, they have been impacted. So naturally, when we talk about the positive aspects of the world of sport, positive aspects are not only physical, as talked by Dr. Manorama ji, that we do not talk only about the physical well-being, but also the mental well-beings, the sociological well-beings, the psychological well-beings, and the ethical values which sports can give to all of us. So there are many values. Now, apart from the fact that it also gives the traditions and the values to the communities to exercise more good morals, more good ethics. बहुत पुरानी कहावत है कि स्पोर्ट्स में कहा जाता है the person who is connected with the sports has a broad view. उसका जो दिमाग का पटल है वो बहुत चौड़ा होता है, बिकॉज उसको कंजर्वेटिज्म नहीं सिखाया जाता है. स्पोर्ट्स में जो बच्चे जाते हैं वो एक थाली में खाते हैं. दे आर फ्री फ्रॉम कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो आपका जो माइंडसेट है वो बेसिकली ब्रॉड होता है. और आज जब हम आपको ये पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, सो आज से बढ़िया दिन नहीं है जब हम सेकेंड ईयर को कमेमोरेट कर रहे हैं. जब पीछे साल अभी मैडम ने बताया था कि हमने मेजर ध्यानचंद जी के दिन में इस कार्यक्रम को शुरू किया था. So this is a best day to start with this. Today when we celebrate this second year of the Fit India movement, Honorable PM ने हमको ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया. The question which bobs us, जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को ये इनिशिएटिव क्यों लेना पड़ेगा. क्या हम अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने सोल के लिए इतने सजग नहीं है? हमको पूछना क्यों पड़ रहा है? Why we have to celebrate these Fit India movement, these NSS activities, कि हम अपने कल्चर से जुड़ें, स्पोर्ट्स से जुड़ें, बॉडी से जुड़ें, हम जिम ज्वाइन करें. छोटी छोटी बातें अभी मैडम मनोरमा जी ने बोली हैं कि हम कुछ एक्सरसाइज करें, हम लिफ्ट को छोड़ दें, हम इधर चलें. सो व्हाई पीपल हैव टू रिमाइंड अस, और व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिमाइंड अस. सो फिटनेस प्लेज जो आपको कहती है उसी में हमारा प्रेजेंटेशन छुपा है. आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि हम डिवोट करेंगे टाइम फिजिकल एक्टिविटी के लिए. स्पोर्ट्स सेकंड चीज हो गई, फिजिकल एक्टिविटी पहली चीज हो गई. स्पोर्ट्स उसको प्रोफेशनल शेप दे देता है. फिजिकल एक्टिविटी जैसे कहा गया है कि लिफ्ट को छोड़ दीजिए, पार्क में टहल लीजिए, घर में थोड़ा टहल लीजिए. एंड आई विल इनकरेज माई फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स. जो ही ये फैमिली मेंबर्स और नेबर्स आ गए, ये हमारी सोसाइटी आ गई बीच में, जिससे कि वो लोग फिजिकली फिट हो जाएं. और जब हम फिजिकली फिट होंगे तो हम नेशन को एक हेल्दी प्रोडक्ट हो जाएंगे नेशन के लिए. वेल, इज इट फीसिबल दैट ऑल एग्री टू मेक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस देयर मंत्रा? अगर ऐसा ही संभव होता कि सब लोग इस स्पोर्ट्स को अपना मंत्र, सक्सेस मंत्र बना देते, तो हमको आज बैठ के वेबिनार पे या फिटनेस के लिए बातें नहीं करनी पड़ती. No, so the question rises why? Why is this sport so important in today's world? आज क्यों इतना
स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो गया है, आज क्यों फिजिकल एक्टिविटी की बात हो गई है, आज हम क्यों इतनी इम्यूनाइजेशन पे बात करते हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को सही करिए, शुद्ध खाना खाइए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए। उसका रीजन क्या है कि हमारा वर्ल्ड जो है, हमने हर जगह पे जो इंक्रोचमेंट किया है उससे हमने करप्शन दे दिया है। वी हैव करप्टेड द एनवायरनमेंट, वी हैव करप्टेड द एटमॉस्फेयर। तो उन सबसे बचने के लिए हमको कुछ एडिशनल काम करने पड़ेंगे। इसमें स्पोर्ट्स का क्या रोल है? हाउ कैन स्पोर्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड द डिफरेंट कल्चर्स इन विच वी प्रिवेल? What kinds of sources are available to the sociologist of sport? देखिए, सोशियोलॉजी से जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर हो सकती है, सोशियोलॉजी ऑफ मार्जिनलाइज हो सकती है, सोशियोलॉजी ऑफ लेजर हो सकती है, सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट हो गई, सोशियोलॉजी ऑफ के बहुत सारे एरियाज हैं, सोशल माइग्रेशन स्टडीज हो गए। उसी प्रकार से सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट हमारी समाज की माइंडसेट की पढ़ाई है, यानी समाज खेल को कैसे देखता है। भारतवर्ष में आज भी अगर आप याद करिए कि पेरेंट्स से जब बच्चे कहते थे कि मेरे को खेलने जाना है, तो उनका पहला इंप्रेशन ये होता था, शायद वो नहीं जाने देते थे, या अगर वो जाने देते थे तो कहते थे आधे घंटे में लौट के आ जाना। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये था कि स्पोर्ट कमर्शियलाइज नहीं है, स्पोर्ट में आगे एवेन्यूज नहीं है, स्पोर्ट में आगे बच्चों के ग्रोथ की संभावनाएं नहीं है। बट ओवर द स्पेस ऑफ टाइम चीजें अब चेंज होती जा रही हैं। कैसे होते जा रही हैं? इन एसोसिएट द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अब देखिए भारत सरकार ने 2018 में खेलो इंडिया गेम शुरू किया। आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। 2019 में खेलो इंडिया गेम्स का सेकेंड वर्जन था, आई वॉज अगेन ए पार्ट ऑफ इट। 2020 में फिर गुवाहाटी में हुआ, आई वॉज ए पार्ट ऑफ इट। ये जो खेलो इंडिया गेम्स है, इस प्रकार से बहुत सारी इनिशिएटिव्स आ गए हैं मार्केट में जो गेम को बहुत ज्यादा कॉमर्शलाइज करते हैं, यानी आगे भी संभावनाएं देते हैं। और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में कैसे इस कॉमर्शलाइजेशन के लिए और प्रयास किए हैं वो आगे बताएंगे अपने फ्यूचर स्लाइड्स में। So what role has the sport played in the past? और अब फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में हमारा स्पोर्ट्स जो है वो कौन सा रोल को प्ले कर सकता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी ऑल, जिनको हम सब, वी ऑल एज स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए, कोई भी प्रोफेसर हो सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है, वीसी हो सकता है, लेकिन जो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो हमेशा ही स्टूडेंट रहता है, न सिर्फ सोशियोलॉजी का, कहीं भी, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और मैं भी जब वेबिनार्स को अटेंड करता हूं तो मैं म्यूट स्पेक्टेटर के रूप में लोगों को सुनने की प्रवृत्ति रखता हूं, क्योंकि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे हम जानते हैं। तो हम जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम रिसर्च करेंगे, हम उसके आंसर्स को जाएंगे। होता क्या है? This requires understanding and interactive ways to develop knowledge and understanding sport एक तरफ और sociology एक तरफ। Now studying sport, adopting a critical sociological approach। हमारी बहुत सारी sociological theories होती हैं जिनको हम स्पोर्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। जैसे बोर्डियो थे, उन्होंने एजेंसी और स्ट्रक्चर की बात करी और बॉडी पे उन्होंने चर्चा करी। उन्होंने बताया था कि कैसे हमारी जो एजेंसीज होती हैं वो स्ट्रक्चर को रेगुलेट करके बॉडी को एक्शन में लाती हैं। उन्होंने उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया था। अलग अलग है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने व्यूज इस पे दिए हैं, चैप्टर्स लिखे हैं। सो स्टडीइंग स्पोर्ट, adopting a critical sociological approach provides an overview of the social significance of sport as a political, economic and cultural force that shapes our lives and experiences। क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके सामाजिक मायने बहुत सारे हैं, जो कि किन रास्तों से निकलते हैं, जो कि आर्थिक रास्तों से निकल सकते हैं, राजनीतिक रास्तों से निकल सकते हैं, तथा सांस्कृतिक रास्तों से भी खेल निकलते हैं। इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। स्पोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ये इम्पॉर्टेंट सोसाइटी का एक मानक है ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्पोररी। आज की हमारी जो सामाजिक चेतना है, सामाजिक जीवन है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। येट, परंतु
मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट्स सोशल सिग्निफिकेंस इज ऑफन इग्नोर्ड। मैंने कहा ना कि पेरेंट्स स्पोर्ट में लोगों को नहीं भेजना चाहते हैं। जरा यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप हम ये विचार करके रख लें कि कितने लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स लाइन में भेजना चाहेंगे। आप मुझको सोच के बताइए इस चीज को। बच्चे कहते हैं कि कायदे से पढ़ाई कर लो तो कहीं पे डॉक्टर चले जाओगे, कहीं टीचर बन जाओगे, कहीं सोशल साइंटिस्ट बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए वो नहीं करते हैं। और मैं आपको जो इतना ज्ञान दे रहा हूं, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव प्रैक्टिस्ड एवरीथिंग। आई शेयर विद दिस थिंग दैट मेरी डॉटर, शी इज अ कल्चरल कथक आर्टिस्ट और अब वो पीएचडी कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में, फुल स्कॉलरशिप थे कल्चर में। मेरा बेटा जो है वो 9th में उसने जिद कर दी कि वो फुटबॉल में खेलेगा। सो मैंने उसको दिल्ली के सुदेवा फुटबॉल एकेडमी में डाल दिया है, जिसमें बच्चों के मन में ये ना रहे कि मैंने उनको स्पोर्ट्स फील्ड में डालने की कोशिश नहीं करी। मैंने अपना कोशिश करा कि वो स्पोर्ट्स फील्ड में डाले। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो कुछ भी अचीव नहीं करेगा तो भी कम से कम अपने शरीर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर एक अच्छा सोल और एक हेल्दी बॉडी लेके जाएगा, तो भी वो मेरे लिए एट द एंड ऑफ द डे इट विल सर्व समथिंग। नौकरी तो वो पा ही जाएगा कहीं ना कहीं। येट मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट्स सोशल सिग्निफिकेंस इज ऑफन इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ प्री कंसीव्ड। हमने पहले से मन में नोशंस बना रखे हैं कि स्पोर्ट जो है, पता नहीं सोशल गुड्स इसमें है कि नहीं है, सामाजिक अच्छाइयां हैं कि नहीं है, आर्थिक अच्छाइयां हैं कि नहीं है। स्पोर्ट्स आर इन फैक्ट ए प्रोडक्ट ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच वी लिव। पौराणिक समय से जो खेल होते थे वो सामाजिक परिधि में होते थे। एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ स्पोर्ट ओनली बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन वी लोकेट देम विद इन देयर हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट। सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देंगे। 2014-15 में प्रोफेसर आनंद कुमार वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी और प्रोफेसर आर इंदिरा, शी वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। मैंने इनको एक प्रपोजल स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के अडॉक ग्रुप के लिए मूव किया था। दे वर काइंड इनफ। और 2014 में जो काशी विद्यापीठ में जिसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मरहूम प्रेसिडेंट प्रणब दा आए थे, उसमें मीटिंग हुई मैनेजिंग कमेटी की, उन्होंने पास किया और फॉर्मल जो है ये फॉर्मल अडॉक ग्रुप स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का भारतीय समाज शास्त्र परिषद में बन गया। उसको अडॉक ग्रुप नंबर 2 कहते हैं। आज की तारीख में वो एक रेगुलर रिसर्च कमेटी बन गई। 6 वर्षों से लगातार उसमें ऑल इंडिया सोशल उसमें पेपर्स भी पढ़े जा रहे हैं और पब्लिकेशंस भी हो रहे हैं। With formal sessions at the All India Sociological Conferences held annually, this sub-discipline has started shaping। और उसके बाद मैंने 2015 से, मुझको 1.5 साल लग गया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की वेबसाइट में जाएंगे और स्पोर्ट्स में जाएंगे और स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी लिखा दिखेगा। जब इसको मैंने फॉलो किया और सेक्रेटरी और मिनिस्टर से भेंट करी तो देवर काइंड इनफ। सरकारी काम में आपको पता है थोड़ा समय जरूर लगता है। मीटिंग के बाद इन्होंने स्कीम ऑफ एचआरडी में इसको इंक्लूड कर दिया है। और सबसे अच्छी बात बता रहे हैं, चूंकि ये हमारे सारे एकेडमिशियंस सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, जैसे आपको ग्रांट्स के लिए या पब्लिकेशंस के लिए या फॉरेन विजिट्स के लिए आपको यूजीसी धन देता है या इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च धन देता है या आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज देता है या आपका यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी देता है, उसी प्रकार से अगर आप स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के एरिया में काम कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी आपको ग्रांट देगा। और मैं आपको सहर्ष बताना चाहता हूं कि ग्रांट का जो लेवल है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट इस लेवल का लिया है तो 50 लाख रुपए तक की भी ग्रांट है। और सारे प्रोजेक्ट्स हैं विदेशों में। अगर आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है, इंडिया में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी की पढ़ाई करनी है, पब्लिकेशंस करने हैं, सेमिनार्स करने हैं, सारे ऑप्शंस हैं। और मैं भारत सरकार के इसी
स्कीम को इनकॉर्पोरेट करके मैं इसको शेयर करना चाहता हूं कि मैं बराबर ही इंटरनेशनल सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के वर्ल्ड कांग्रेस में मैं चेयर करता हूं सेशंस को। एंड मैं 15 में भी गया था, फिर मैं 16 में भी गया हूं। 16 में मैं वियना गया और ब्यूडापेस्ट गया, फिर 18 में मैं लुज़ान स्विट्जरलैंड गया। अभी 20 से बंद हो रखा है क्योंकि कोरोना है। तो ये मैंने एकेडमिशियंस को एक सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स का थोड़ा बैकग्राउंड मैंने हल्का सा ये बताना चाहा। नाउ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू लेजिस्लेशन इन जनरल एंड द कॉर्पोरेटाइजेशन, जब हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कॉर्पोरेटाइजेशन कहते हैं, there has been a slow but steady growth in the sociology of sport as a field of academic study all over the globe। सब जगह पे इसमें जो ग्रोथ हुई है वो हुई है, लेकिन स्लो हुई है और ग्रेजुअल हुई है। Curiously यानी anxiously, this has occurred with simultaneously an economic growth in the interest of sport। स्पोर्ट में तो बहुत बड़ा है, लेकिन शायद स्पोर्ट साइकोलॉजी में बहुत बड़ा है, शायद स्पोर्ट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा है, स्पोर्ट सोशियोलॉजी में नहीं बड़ा है उस मुकाबले। लेकिन ये बात मैं आज से 3 साल और 4 साल और 5 साल पहले की बता रहा था वर्ल्ड ओवर में। इधर ग्रेजुअली सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट भी बहुत जोर से मोमेंटम लेना शुरू कर दिया है और बहुत ही स्कॉलरली आर्टिकल्स और पब्लिकेशंस इसमें आ रहे हैं। सिंस आई हैपन टू बी द रिव्यूअर ऑफ द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, तो मैं देख रहा हूं कि ग्लोब के सारे तरफ से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत क्वालिटी पेपर्स रिव्यू के लिए इसमें आ रहे हैं। नाउ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंटरेस्ट्स are increasingly aware of sports strategic innovation at the intersection of key sectors of society। जब हम प्राइवेट और पब्लिक की बात करते हैं तो प्राइवेट के लिए हमको मुंह नहीं बनाने चाहिए। दोनों ही स्टेक होल्डर्स जब लगेंगे किसी काम के लिए तो वो स्पोर्ट्स को हराएंगे। किसी की भी अति गलत होती है। जैसे हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी में कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक दोनों पक्ष है। कैपिटलिज्म बोले खराब है, कैपिटलिज्म बोले अच्छा है। नो, जहां तक वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहा है वो उचित है, क्योंकि अंबानी अडानी इनके बगैर भी आपका काम नहीं चलना है। लेकिन ये अगर सोसाइटी को डोमिनेट कर देंगे तो भी काम नहीं चलना है। तो लिहाजा जो प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, जब ये इंटरसेक्शन करेंगे सोसाइटी को और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, जैसे वो अन्य सेक्टर्स में आगे बढ़ाएंगे और स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग करेंगे, तो एक सिनेरियो में चेंज आता है। Moreover, scholars spanning in other fields, not only sociology but many other fields, वो अब इस स्पोर्ट को सोशल सिग्निफिकेंस को समझ रहे हैं। आज हम जब स्पोर्ट को स्टडी करने जाते हैं सोशियोलॉजिकल एंगल से, तो हम जेंडर भी देख लेते हैं, हम कल्चर भी देख लेते हैं, हम स्पोर्ट्स में मार्जिनलाइजेशन की बात भी कर लेते हैं, हम सब बात कर सकते हैं। हम माइनॉरिटी में स्पोर्ट्स का क्या भूमिका है वो भी पढ़ लेते हैं। सो हम स्पोर्ट्स को, मैं एकेडमिशियंस को बताना चाह रहा हूँ, सोशियोलॉजी को खासतौर पे, कि स्पोर्ट्स में वो जिस भी एरिया में काम वो सोशियोलॉजी में जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं करते रहें। वो मीडिया में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से जोड़ दें। वो जेंडर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से जोड़ दें। वो कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से जोड़ दें। वो डायस्पोरा स्टडीज में कर रहे हैं, माइग्रेशन में, स्पोर्ट्स से जोड़ दें। आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है इसमें पढ़ाई करने के लिए। नाउ एज वी अप्रोच द 20th ईयर ऑफ द न्यू मिलेनियम, सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट प्रोवाइड्स एन आइडियल प्लेटफॉर्म टू रिफ्लेक्ट, इवैल्यूएट एंड कंटेम्पलेट। हम पीछे पास्ट को समझें, प्रेजेंट को एनालिसिस करें और फ्यूचर इस फील्ड की समझें। आज जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमको अब ये 6-8 महीना कोविड के विषय में भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में मैं कई डोपिंग सेमिनार्स में बोल रहा था और हमारे एथलीट्स में बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, जैसे सारे एरियाज में आ रहा है फ्रस्ट्रेशन। जैसे हम वेबिनार कर रहे हैं वैसे वहां भी हमने बहुत वेबिनार्स किए हैं। तो लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है, इसको हमारे समाजशास्त्री कैसे पढ़ेंगे? हमारे समाजशास्त्रियों को डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं। कोई अगर सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स में 1 साल पहले उसकी सिनॉप्सिस सबमिट हुई होगी, आज हो सकता है उसकी सिनॉप्सिस की पोजीशन उसको रिव्यू करनी पड़े। व्हाइल द सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल
specializations has successfully identified social fault lines within sport. Discussions about how to use this through collective action and social policy, particularly in context to India, have been far less robust. इसका मतलब है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स का इस्तेमाल जितना होना था नहीं हो रहा है। सोसाइटी बदल रही है, खेलो इंडिया गेम्स आ गया है, अब छोटे एरिया से भी आप लोगों को निकाल के खिलाड़ी बनते हुए देख सकते हो, है ना। अगर हिमा दास आ गई या कोई छोटे एरिया से लोग आके आपके सामने आ रहे हैं तो ये रीजन ओपननेस का है। तो हमारे समाज शास्त्रियों के लिए अब बहुत अवसर है इस खेल को इनके विभिन्न आयाम को स्टडी करने के लिए। इन शॉर्ट, इट इज टाइमली फॉर आवर फील्ड टू एनविजन, सपना देखें, आगे का मिशन देखें, एंड क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव फ्यूचर फॉर बोथ स्पोर्ट एंड उसकी सामाजिक दायरे को, सोशियोलॉजिकल दायरे को समझने के लिए एनालिसिस की। आगे की रोड क्या है? वी एप्रीहेंड वेल दैट स्पोर्ट्स इज द सोशल फेनोमेना, नोइंग बाय दिस टाइम। अब आपको थोड़ा हम सोशियोलॉजी स्पोर्ट्स को बताते हुए चले आ रहे थे। इट इज एन एरिया ऑफ स्टडी कंसर्न विद रिलेशनशिप बिटवीन समाजशास्त्र और खेल एंड ऑल्सो वेरियस सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। जब हम फैमिली की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन में फैमिली भी आ जाती है, इंस्टीट्यूशन में संस्थाएं भी आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटीज भी आ जाते हैं। वहां पे स्पोर्ट्स का क्या पैटर्न है? नए आयाम आ गए हैं सोशियोलॉजिकल सिस्टम से डिस्कस करने में। फिटनेस इंडिया आ गया है, हम स्टडी करना चाहेंगे, उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। अंशु जी जैसे कि एनएसएस के प्रोग्राम को हैंडल कर रही है, एनएसएस के कितने, आप एनएसएस के विजन को पढ़िए, उसके कितने विजन है, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। वी ऑट नाउ टू मूव फॉरवर्ड इन दीज टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अभी इस समय थोड़ी विपत्ति के समय है। स्टडी द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। जो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे, हमारी इम्यून सिस्टम ठीक होते हैं, हमारे बच्चे जो आज जैसे बोला गया है अभी शुरू में कि दे आर ग्लूड मतलब वो चिपके हुए हैं अपने सेल फोन से या अपने लैपटॉप से, उनको हम कैसे बाहर निकालें। या हम ट्रेडिशनल अपनी जो पुराने समय में हम लोग कितने गेम्स खेलते थे, हमारे यहाँ जेंडर कॉन्शियसनेस नहीं थी, हम लोग लड़कियों के कड़के होते थे, रस्सी कूद होती थी, कंचा होता था, पतंग होता था, हम लोग कुछ भी खेल खेलते थे, हम लोग के पास वो जेंडर कॉन्शियसनेस नहीं थी, हम लोग सब खेलते थे। तो हम कैसे इस परिपाटी में लोगों को वापस आ सकते हैं? एंड स्टडी द पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट स्पोर्ट्स कैन हैव ऑन द पीपल। जब इंडिविजुअल के दिमाग में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो सोसाइटी भी पॉजिटिव ही होगी। आप इस बात को समझिए। और जब सोसाइटी पॉजिटिव होगी तो वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भारतवर्ष को सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में बनाएंगे। और संभवतः यही हमारे प्राइम मिनिस्टर का उद्देश्य है। उनको सब लोग को वो जो एग्जॉर्ट कर रहे हैं, आइए इस मूवमेंट से जुड़े हैं। और अभी आप थोड़ी देर में अंजनी साहब बोलेंगे तो वो आपको योगा के विषय में बताएंगे कि कैसे हमने इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ले आया है। तो ये समग्र प्रयास है, छोटे छोटे। सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स ऐसा ही छोटा सा प्रयास है, सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स भी प्रयास है। और मैं किसी भी प्रयास को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, छोटा नहीं कर रहा हूँ। कलेक्टिवली हम लगेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं 2008 में चाइना गया, पहला विजिट जो चाइना का था, और मैंने देखा कि वहां पे पार्क में जो माएँ हैं वो आती हैं और वो बॉल में उनकी स्ट्रिंग लगी होती है, वो बॉल को फेंक देती हैं, वो भाग नहीं पाती हैं जोर से, तो उनको बेटे भाग भाग को करते हैं। शाम को सारे फैमिलीज पार्क में पहुंच जाती हैं। तो ऐसे कॉन्शियसनेस हम जब लाएंगे कि हमको आधा एक घंटा कुछ उछल कूद करनी है, कुछ वॉकिंग करनी है, लिफ्ट को छोड़ देना है। मैंने 4 साल से अपने कार्यालय की लिफ्ट को छोड़ रखी है, मैं लिफ्ट यूज नहीं करता हूँ। ये सब लोग थोड़ा थोड़ा आप आजमाएं। One of the most important bodies of research in the sociology of sport concerns the relationship between sport और जो हमारे भारतवर्ष की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सामाजिक बराबरी जो है एक हमेशा से समस्या रही है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है। कहीं पे वो रेसिज्म का पार्ट है। अगर यूएस में आपने ब्लैक और व्हाइट में कोई बात सोची है तो वहां हो सकता हो सोशल
इक्वालिटी की, किसी और सिस्टम से वहां पे प्रॉब्लम थी। अगर अपार्थाइड की हम बात करते हैं, जिसको नेल्सन मंडेला के इतने सालों तक लड़ा, तो वहां सोशल इनइक्वालिटी डिफरेंट टाइप्स में है, कहीं पे रेसिज्म है, कहीं पे जात पात है। इन सबको हम स्पोर्ट्स से और फिजिकल एक्टिविटीज से हो सकते हैं, निकाल सकते हैं। रिसर्च कंसिस्टेंटली शोज नॉट ओनली दैट इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज रेशियल माइनॉरिटीज एंजॉय मोर लिमिटेड, जो भी माइनॉरिटीज होती हैं, माइनॉरिटीज का मतलब होता है जिनके पास सुविधाएं कंपैरेटिवली कम पहुंची होती हैं, वो लिमिटेड एक्सेस स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। और जो धनवान होते हैं, जो इकोनॉमिकली साउंड होते हैं, वो भी स्पोर्ट्स को अकॉर्डिंगली एलाइटी स्पोर्ट, अब गोल्फ को आप एलाइटी स्पोर्ट में मानते हैं तो जल्दी उसमें नीचे की रेशियल माइनॉरिटीज नहीं आ सकती हैं। हमको इन सब चीजों के बीच में गैप को एड्रेस करना है, बट ऑल्सो दैट रेशियल माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन इट टेंड्स टू बी लिमिटेड टू स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, जैसे मैंने बताया, जो कि स्टीरियोटाइप है, जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ा है कि भाई स्नूकर है और बिलियर्ड्स है और गोल्फ है, वो बड़े लोग खेलेंगे जो कार से निकल के आते हैं। तो इन सब चीजों पे भी हमको विचार करना। नाउ सिमिलरली रिसर्च कंसिस्टेंटली शोज that girls and women have lower rates of participation in sports and physical activity। ये हमारे समाज शास्त्रियों के लिए अलग विषय है। हम तो पहले के जमाने में लड़कियां कंपैरेटिवली माना जाता था कि बोले बड़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी है और गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स नहीं बना हुआ है। सारी चीजों को चेंज आ गया है, सब चेंज आ रहा है। एंड दैट ए हायर पर्सन्स इनकम, अगर किसी का एजुकेशनल लेवल बड़ा है, उसकी इनकम ज्यादा है, तो संभवतः वो स्पोर्ट में ज्यादा एक्टिविटी लेगा, फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा लेगा। इन सब चीजों पे चेंज आ रहा है। दिस लीड्स टू द फर्स्ट पॉइंट टू बी मेड अबाउट सच रिलेशनशिप, वन इज कैरेक्टराइज्ड ओनली बाय देयर रेस और एथनिसिटी। सिर्फ रेस और एथनिसिटी से वो जोड़ा नहीं है, या जेंडर से जोड़ा नहीं है, या सोशल क्लास से जोड़ा नहीं है। हम सारे का एक जेंडर है, एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, किसी का रेशियल या एथनिक कोई एफिलिएशन है, पृष्ठभूमि है, और बहुत सारी सोशल कैरेक्टरिस्टिक सामाजिक जुड़ाव हैं जो कि हमारे लिए मेरिट्स का या डीमेरिट्स काम करता है, और वो हमारे लाइफ को उसी हिसाब से सांस्कृतिक और स्ट्रक्चरल रूप में आगे शो करता है। और ये बात डॉनेली ने 1995 में इसको प्रूफ किया है अपने उसमें। Now a further shift in the sociology of sports has led to far greater attention being paid to gender and race than to socialist class। क्योंकि सोशोलॉजिस्ट पिछले साल से ये समझते आ रहे हैं कि अगर हमने जेंडर को देखिए, ये प्रवृत्ति है। अब जैसे 4 महीने से 5 महीने से कोरोना है, तो आपने देखा होगा कि वेबिनार्स की बाढ़ आ गई है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चले, बाढ़ आ गई है, क्या हम इन वेबिनार्स को अटेंड कर रहे हैं, और उसके बाद इग्नू से हम जुड़े हैं या किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, तो क्या हम कभी इसकी एक कंबाइन करके रिपोर्ट अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जिलाधिकारी कार्यालय को, या स्टेट गवर्नमेंट को, या कहीं हम भेजते, या हम सिर्फ वेबिनार करके बाहर रखते हैं? हम यही कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट में पिछले वर्षों से रेस में वेस्टर्न पार्ट पे और जेंडर में भी वेस्टर्न पार्ट पे बहुत काम हुआ है। इसलिए पिछले 3-4 सालों में जेंडर और रेस ने इस एरिया को डोमिनेट किया है। स्पोर्ट शुरू में जो तो कहा जाता था कि वो पौरुष माना जाता था, school for masculinity at a time of rapidly changing gender relations and increasing social power for women, sport was considered to one of the last bastions। अब स्पोर्ट वो पुरानी चीजों से पुराने दुर्ग से बाहर आ चुका है कि सिर्फ पुरुष ही खेल सकता है, उससे बाहर आ गया है। In addition to helping to reproduce gender relations, sports also came to be viewed as one of the barriers to changing race relations। यानी रेसिज्म को भी कम करने में इतने सोशियोलॉजिस्ट ने जो बहुत स्टडी करी है, उसमें ये एविडेंस निकल के आए हुए हैं। Helping to maintain the notion that certain racial characteristics, जब हम रेशियल बात करते हैं तो वो फिजिकल भी होती है, मेंटल हैरेसमेंट भी होता है। हमारे यहाँ भी कोरोना आया तो चाइनीज थे, तो हम लोगों ने फर्स्ट से कई लोगों ने जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आ रहे हैं उनको चाइनीज से ही जोड़ना शुरू कर दिया। तो ये क्या है?
हम रेसिज्म को मेंटल भी रख रहे हैं और फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं। एंड प्रमोटिंग स्टीरियोटाइपिकल, यानी हमारे दिमाग में एक बना हुआ है और हम उन व्यूज को बढ़ा रहे हैं, इसमें भी अब कमी आई है। अब नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस स्लाइड्स, ये आज का जो वेबिनार का टॉपिक है, इसका रिलीजियस अप्रोच फिट इंडिया का क्या हो सकता है। मच ऑफ व्हाट वी नो अबाउट सोसाइटीज, रिलेशनशिप्स एंड सोशल बिहेवियर हैज इमर्ज्ड। बहुत सारी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज मैंने बोर्डियो के बारे में बताया, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स टिपिकली स्पेंड ग्रेट टाइम, हम लोग स्टूडेंट्स बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है, हमको बतानी नहीं है। सिंपोलिज्म की थ्योरी है, सिंपोलिज्म को हम कैसे क्रिकेट में यूज कर सकते हैं, कैसे फुटबॉल में यूज कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज समय रहते रहते क्या कहना चाहिए, ऑब्सोलीट हो गई, डिस्कार्डेड हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सामाजिक चेतना को जगाने में, समाजशास्त्र में योगदान नहीं दिया है। अगर किसी टाइम पे कार्ल मार्क्स ने या किसी टाइम पे दुर्खीम ने सोसाइटी की बात करी थी, उसका जो सोसाइटी का परव्यू है वो आज भी रेलेवेंस रखता है। वो बात दूसरी है कि अब सोसाइटी डिफरेंट एंगल से देख के चलती है, क्योंकि वो 1797 और 1800 का एरिया नहीं है, वो एरियाज चेंज हो गए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट बताया जा चुका है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया है, और फिटनेस और वेलनेस की बात है, और ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए ये एक एस्पेक्ट है। We have to gather critical analysis and perspectives from different standpoints। मैं सारे समाजशास्त्रियों और स्टूडेंट्स से खासतौर पे कहूंगा कि इस एंगल से अपनी पढ़ाई को करने का वो बीड़ा उठाएं, और खासतौर पे मैं सोशियोलॉजिस्ट से कहूंगा कि वो स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट बने, मुझसे वो संपर्क करें। मैं इस एरिया में बहुत सारी चीजें जो ये आधे पौन घंटे में मैं नहीं बता सकता हूँ कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे हो सकती हैं, सोसाइटी को, समाज को एक रूपता लाने में, बराबरी का दर्जा लाने में, जात पात और बैरियर्स को काटने में कैसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का, वो हम बताएंगे। कंक्लूजन, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इन सोसाइटी हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट फॉर सेंचुरीज। For some observers, sport is viewed as a physical activity। कोई खेल को कहते हैं सिर्फ उछल कूद है। Always associated with competition, कि आप खेल कूदोगे और नेशन को पदक लेके आओगे और हमारा सम्मान बनेगा। But just as sport has the capacity to awaken exaggerated national sentiments, स्पोर्ट को यह है कि आपके जो राष्ट्रवादी अंदर विचार है, उत्तेजना है, उसको आगे करता है, लेकिन साथ ही साथ वो इंटॉलरेंस और अहिंसा को भी दबाता है। There is also a sector of society that supports the notion that sport can serve as a means to advance social development processes through leisurely practices, है ना। जब हम लेजर प्रैक्टिस करते हैं तो फिट इंडिया को भी हम लेजर मूवमेंट पे ला सकते हैं। यानी जो फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, अगर आप स्पेसिफिक स्पोर्ट नहीं करना चाहते हैं, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कोई नहीं, लेकिन आप लेजरली प्रैक्टिसेस के रूप में फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने लिफ्ट को छोड़ दिया, आपने घर में आधे घंटे का कुछ उछल कूद कर ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हमारे फिट इंडिया को मूवमेंट को जाएगा। There is currently direct evidence that sport contributes to sociological and economic development, सारे पेपर्स हैं, through fostering सामाजिक समरसता को बढ़ाता है, सोशल इंक्लूजन करता है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट को वो प्रमोट करता है, और सब्सटेंशियल सोशल वैल्यू को बढ़ावा देता है। These approaches are at the heart of the न्यूलिबरल्स के एजेंडा में है टू इम्प्रूव इंडिविजुअल फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी सबके लिए। और स्पोर्ट प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बहुत पैशनेट है इस बात के लिए कि उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं। स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस बिल्ड सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट बिकॉज दे बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टीच रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। मेरी पीएचडी भी इसी पे आधारित थी, क्योंकि मैंने 2 स्टेट्स को कवर किया था, यूपी को, बिहार को। नाउ स्पोर्ट्स वाइडन आवर सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक दायरा बढ़ाते हैं, टॉलरेंस बढ़ाते हैं, हमारी सब इगैलिटेरियन वैल्यूज को बढ़ाते हैं, और पीपल जो हैं वो गेम्स इसलिए नहीं कहते हैं कि वो मॉरली और एथिकली साउंड होंगे। मॉरल और एथिकल जो इश्यूज हैं वो बाई प्रोडक्ट है गेम का। वो खेलते खेलते, अगर कोई एक्सरसाइज करते करते, खेलते खेलते आप एथिकल हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि एक साथ स्पोर्ट वाले एक ही
उसमें खाना खा लेते हैं, एक ही थाली में खाना खा लेते हैं, एक ही वॉशरूम को यूज करते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, यानी कि आपको एथिकल वैल्यूज आपकी बढ़ती हैं। व्हाइल बीइंग एनेक्डोटल, दिस प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन को मैंने कोशिश किया है कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करे एविडेंस बेस्ड इस क्लेम के लिए कि लेजर एक्टिविटीज जो हैं through sports attempts at doing socially and morally good to the society. This presentation outlines the positive or and can have in key in the sociological development areas of health, education and economy, as well as the influence it can have in achieving social development, in sociological development, integration and resolving disputes and conflicts. In doing so, it advocates the incorporation of sport into sociological development policies. मैंने गवर्नमेंट को भी पेपर भेजा हुआ है, लेट अस सी क्या आता है उसका, as well as the sociological development agendas of national and international sociological development agencies. रेफरेंसेस हैं, मेरी ईमेल आईडी है डॉक्टर प्रमोद जी के पास और सबके पास। किसी को रेफरेंसेस और कुछ और चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और बिफोर आई फिनिश दिस प्रेजेंटेशन, मैं आप लोग को एक सिर्फ चीज बताना चाहता हूँ, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, और मैं प्रेजेंटेशन को ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आई वॉज लकी इनफ, रादर वी वर लकी इनफ टू बी कॉल्ड अपॉन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस many things with him, and one being the sports sociology, and he was kind enough to direct me to the Ministry of Youth Affairs and Sports, and उन्होंने मुझे कहा कि आप continuously इस पे काम करिए। तो होता है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक इम्पटस मिलता है, ये सपोर्ट मिलता है, ये आपको काम करने के लिए इच्छा होती है। और प्रमोद जी और अंशु जी जानती हैं कि हमारे इस कार्य में बीच में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हुई थी, लेकिन प्रभु की कृपा से वो बाधाएं हम लोग की समाप्त हो गई। अब हम विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि रिसर्च कमेटी नंबर 25 यानी सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स भारतीय समाज शास्त्र परिषद की आप लोग मेंबरशिप जरूर लीजिएगा और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। I hope I have tried to do some justice with the presentation. चूंकि नया टॉपिक है, इसको कितने लोगों ने गैदर किया है, they can discuss with me individually also. और ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब प्रश्न उत्तरी का समय आएगा तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको।